I'm not visible. Yes, you are visual. Your recording is also showing. Okay, let's start. Okay, sir. Good morning. Yes, very good morning, ma'am. How are you today? I am doing great, sir. And what about you? Yes, I'm also great. So today we are going to go like rapid fire round. So okay, so should I make you rapid fire related tenses or models? Yes, I am ready. Okay, you are ready. First tenses. Let's see check your tenses whether you are perfect or not. So by Yes. situation I'm going to ask you question like simple action. मेरे डैड ऑफिस जाते हैं. Please repeat again. मेरे डैड ऑफिस जाते हैं. सिंपल एक्शन. My father goes to office. क्या मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है? Does my sister go to college? मेरे मॉम के पास मोबाइल है. पोजीशन. My mother has a mobile. मेरे भाई के पास मोबाइल नहीं है. My brother doesn't have a mobile. करेक्ट. कंपल्सन. मेरी मॉम को खाना पकाना पड़ता है. My mother have to cook food. My mother has to cook food. Sorry. ओके. क्या आपके डैड को मार्केट जाना पड़ता है? Does your mother has to go to market? ठीक है. स्टेट ऑफ बीइंग. क्या आपकी मॉम कमरे में है? Is your mother at the room? In the room? इन द. ओके. मैं छत पर हूँ. छत पर. I am on the roof. मैं पार्क में नहीं हूँ. I am not in the park. तुम मार्केट में नहीं हो. You are not in the market. ठीक है. एक्शन गोइंग ऑन. मैं खाना पका रही हूँ. I am making I am cooking food. मेरी मॉम कपड़े धो रही हैं. My mother is washing clothes. क्या तुम्हारा दोस्त मार्केट जा रहा है? Does your friend going to market? Is your. Is your friend going to market? करेक्ट. एक्शन डन. मैंने खाना बना लिया है. I have done my food. मेरी मॉम ने कपड़े धो लिए हैं. My mother washed clothes. मेरे डैड ऑफिस चले गए हैं. My father went to office. Has gone to office. एक्शन डन. Yeah. रिसेंटली के जो काम हमने खत्म किए हैं उनको मैं नहीं गिना रहा. ठीक है. अब पास्ट. सिंपल एक्शन. कल मैं मार्केट गई थी. I went to market yesterday. कल तुम स्कूल नहीं गए थे. You didn't school and yesterday. Yesterday you didn't school. Didn't go to school. Yeah. Okay. Yesterday you didn't go to school. पोजीशन. कल मेरे पास 200 रुपये थे. I had 200 money yesterday. 200 रुपीस. मनी मत बोलो. रुपीस. 200 rupees. Sorry. मेरे डैड के पास लैपटॉप था. My father has a laptop. Had. My father had laptop. A laptop. Okay. कल मेरे पास पेन नहीं था. Yesterday I had no pen. I didn't. No.
Didn't भी लगा सकते हो, had not have pen. Okay. I didn't no pen. I didn't have a fan yesterday. Okay. Compulsion. कल मुझे कपड़े धोने पड़े थे. I had yesterday I had washed the clothes. I had to wash clothes. Yeah, I had to wash the clothes. Wash the clothes. Okay. क्या कल तुमको मार्केट जाना पड़ा था? Yesterday you have to go to market. नहीं, क्वेश्चन है. क्वेश्चन है तो did से. Did you have to? Did you have to? Yeah, did you have to go to market yesterday? Correct. Okay. State of being. कल मैं पार्क में थी. I was in the park. मेरे डैड ऑफिस में थे. My father was office at in the office. My father was in the office. Okay. क्या तुम्हारी मॉम किचन में थी? Was your mother in the kitchen? Correct. Action going on. कल मैं टीवी देख रही थी. टीवी देख रही थी. I was watching the TV yesterday. क्या तुम्हारी मॉम गाने सुन रही थी? Was your mother listening music? कल तुम पढ़ नहीं रहे थे. Yesterday you was not reading. You were, You were not reading. Sorry, you were not reading. Okay. Action done. कल मैंने अपना रूम सजा लिया था गेस्ट के आने से. I decorated the room. Yeah. After before coming. Before my guest came. Before my guest came. लेकिन फर्स्ट वाले क्लोज में ना had लगा के थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा. I had decorated my room before my guest came. I had decorated my room before guest came. Before के बाद हमें सब्जेक्ट दिखाना है और वर्ब सेकंड फॉर्म दिखाना है. Have done means present perfect. Past perfect. जब हम कोई काम कर लेते हैं पास्ट में, किसी काम होने से पहले कोई काम कर लेते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट होता है. पास्ट का भी पास्ट. ठीक है. कल डैड के आने से पहले मैंने डिनर बना लिया था. I have done my dinner before came my dad. Before my dad came. Before के बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वो वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म में होगा. और जैसे कि हम बता रहे हैं ना कि डैड के आने से पहले, तो डैड आए ये पास्ट हो गया और उसके पहले जितने सारे काम हुए होंगे तो हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि मैंने रूम साफ कर लिया था. आई हैड क्लीन्ड माय रूम. मैंने कपड़े धो लिए थे. आई हैड वॉश्ड माय क्लोथ. आई हैड like decorated my room before my guest came, before you came, before my mother came. So ठीक है. एक और मॉम के आने से पहले मैंने रूम को साफ कर दिया था. I have cleaned my room before mother came. Now it's correct. ठीक है. अभी हमने वो टाइम वाले मैंने अभी नहीं पूछ रहा हूँ. ठीक है. अब फ्यूचर. Okay. कल मैं तुमसे मिलूंगी. I will meet you tomorrow. Okay. Yes. कल मैं मार्केट जाऊंगी. I will go to market tomorrow. क्या कल तुम कॉलेज जाओगे? Will you go to college tomorrow? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा. I will not go to tomorrow. I will not go to college tomorrow.
आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। कल मैं घर पर होंगी, मतलब घर पर रहूंगी, घर पर होंगी। I will be at home tomorrow. ये है स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, Yes. तुम कहाँ होंगे? Where पर कहाँ होगे? वेयर विल Where will be वेयर tomorrow? विल वेयर विल यू बी टुमारो? Yeah. Where will be you tomorrow? वेयर विल के बाद सब्जेक्ट रखो, तब बी लास्ट में ले जाओ। Okay. Where will you be tomorrow? क्या तुम कल पार्क में होगे? कल क्या? कल तुम what will you be in park tomorrow? नहीं, व्हाट नहीं लगेगा। जब हम यस नो में क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे तो हमने ना हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन उठाना है कि Will क्या। you? विल यू, क्योंकि इसका ना हम यस नो में Yeah. कुछ रिप्लाई कर सकते हैं कि नहीं या फिर हाँ, ऐसा करके और व्हाट Yes. Okay. Yes. व्हाट से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो विल यू Yes. बी इन द पार्क टुमारो, Yeah. ठीक है। सिंपल एक्शन हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, कंपल्सन। Yes. Okay. कल मुझे ना कपड़े धोने पड़ेंगे। I will have to wash clothes tomorrow. क्या तुमको मार्केट जाना पड़ेगा? Will you have to go to market? कल मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। I will have to not anything tomorrow. आई विल के बाद नोट लगाओ। I will not. हैव टू I will have to. I will not have to. Yeah. डू। आई विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग टुमारो। Anything. करेक्ट। ओके। पोजीशन, कल मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। I will have to. I will be. आई विल हैव। Yeah. I will have money. Please repeat your question. कल मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। I will have money a lot of tomorrow. आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। I will have lot of money tomorrow. कल मेरे पास बाइक होगी। I will have bike tomorrow. आई विल हैव अ बाइक टुमारो। क्या कल तुम्हारे पास लैपटॉप होगा? Will you have a laptop tomorrow? ठीक है। एक्शन गोइंग ऑन, क्या कल तुम पढ़ रहे होगे? Will you be reading tomorrow? कल मैं खाना पका रही होंगी। We will cooking food tomorrow. आई विल बी, कल मैं खाना पका रही होंगी। Okay. I will be cooking food tomorrow. करेक्ट। ठीक है, इतने सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये यूज में आते हैं। अभी एक्शन डन वाला है, देखते हैं। गेस्ट के आने से पहले मैं अपना रूम साफ कर लूंगी। I will have clean my room before came guest. नहीं, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। हाँ, बिफोर के बाद सब्जेक्ट। So subject so guest is. हाँ, तो फिर से बोलो, मतलब बिफोर लगाना है, फिर सब्जेक्ट बोलना है, फिर वर्ब लगाना है। और वर्ब, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि पिछले वाले में सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, वो पास्ट की बात थी। I will have cleaned my room before guest come. और मेरी मॉम के आने से पहले मैं खाना बना लूंगी। My mother have came
at home. पहले मैं खाना बना लूंगी, पहले तो बोलो मैं खाना बना लूंगी। I will make food. नहीं, ये एक्शन डन मतलब एक ऐसा काम I will, कर लूंगी। तो okay. परफेक्ट। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म Yeah. I will have make food. मेड फूड। ओके, मॉम के आने से पहले Before mom come at home. कम्स यू नो, प्रेजेंट सिंपल सारा प्रेजेंट का फॉलो करेगा ये। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम्स, एस लगाना पड़ेगा, प्लूरल है तो जस्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अभी हमने टाइम वाले नहीं पूछे, यू नो, टाइम वाले स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, एक्शन, गोइंग ऑन। ओके, लीव इट। ये हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। आप तो मतलब कहीं आपको तो सब आता है, यू नो, द वे यू रिप्लाइड इट्स अमेजिंग, but you need practice a little bit, you know, by this. Yes. Okay, next model I think. Yes. Okay, शायद तुम घर पर होगे, state of being. Maybe you at home. Maybe you are at home, you know, अगर maybe पहले लगाओगे, नहीं Okay. तो Maybe you are at home. Okay, sorry. अगर मॉडल का यूज करोगे तो you might be, you might be, you may be, you know, you would be, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट होगा और मॉडल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर भी होगा। यू माइट, जैसे सब्जेक्ट और माइट बी या मे बी ऐसा कुछ होगा, वुड भी लगा सकते हो। तो यू माइट बी एट होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद मॉम किचन में होंगी। Maybe my mother is at kitchen. इज इन द किचन। Is in the kitchen. लेकिन ये मॉडल का वो नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर अलग से आता है, यू नो, बोलने के लिए। मे बी यू आर डूइंग दिस, मे बी यू आर डूइंग दैट। ओके, ठीक है। I have to revise. State- Yeah, I have to revise state of- everything. एक स्टेट ऑफ बीइंग में बोलो ना, जैसे कि शायद तुम्हारा भाई छत पर होगा। Maybe your brother is. मे भी पहले मत लगाओ। चलो मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे बोलना है, अगर आपको मॉडल में ही बोलना है तो सब्जेक्ट होगा, फिर माइट भी लगाओ या मे भी लगाओ या वुड भी लगाओ, फिर उसके बाद वो प्लेस दिखाओ प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, और ऐसे भी नहीं प्लेस ही दिखा सकते हो, आप स्टेट बता सकते हो कि शायद तुम दुखी होगे, शायद तुम हैप्पी होगे, शायद तुम बीमार होगे। ये सारे जितने स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग दिखाते हैं, शायद वो डॉक्टर होगी, शायद वो टीचर होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा हम डाउट है हमें, हम बोल रहे हैं, हम क्लियरली नहीं बोल रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है ऐसा। तो ठीक है, शायद तुम्हारा भाई छत पर होगा, तो सब्जेक्ट होगा मे बी, वुड बी, माइट बी, ये लगाना है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद प्लेस लगाना है। बोलो। Your. Sir, please repeat your question. शायद आपका भाई छत पर होगा। Your brother may be on the roof. करेक्ट। शायद तुम टीचर होगी। You may be a teacher. करेक्ट, ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग था। अब हम बात करेंगे सिंपल एक्शन। जैसे सिंपल एक्शन हम लोगों ने सीखा ना, तो मॉडल होगा, सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, शायद वो नहीं आए, शायद आज मैं मार्केट जाऊंगा। Maybe I भी नहीं लगेगा, यू नो, ये सिंपल एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग में भी लगता है। तो शायद मैं मार्केट जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं मार्केट जाऊं, यू नो। तो may I go to market? मे आई, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं सिंपल में बोल रहा हूँ, शायद मैं मार्केट जाऊंगी। So please tell me. हाँ, सब्जेक्ट होगा, मे होगा या वुड होगा या माइट होगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखाना है। I may go to market today. I may go to market. Okay, you can. शायद आज मैं अपने दोस्त से मिलूंगी।
I may meet my friend today. I may meet my friend today. Yes. ओके, करेक्ट करेक्ट। तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, सिंपल एक्शन हो गया, एक्शन गोइंग ऑन देखते हैं ना। शायद तुम्हारी मॉम खाना पका रही होंगी। Your mother may be cooking food. करेक्ट। और शायद तुम्हारी सिस्टर पढ़ रही होगी। Your sister may be studying. करेक्ट। तो ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। कंपल्सन देखते हैं ना। शायद आज मुझको कपड़े धोने पड़ेंगे। I may have to. करेक्ट। I may have to wash clothes. I may have to wash clothes. शायद मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा। I may have to go to college. ठीक है, तो ये कंपल्सन। अब पोजीशन पे आते हैं। पोजीशन देखो, सारे स्ट्रक्चर टेंस को फॉलो कर रहे हैं। 9 ही सिचुएशन होती हैं हर कहीं, मॉडल में, पॉजिटिव में, पैसिव में, हर एक चीज में। तो इसी पे प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, पोजीशन। शायद उसके पास पैसे होंगे। He may be have a money. बी अब नहीं लगेगा। बी ना केवल दो चीजों में लगता है, स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन गोइंग ऑन। तब माइट बी, मे बी कर सकते हो उसके बाद। लेकिन जब पोजीशन आएगा कोई भी नहीं लगेगा, सिंपल एक्शन आएगा कोई भी नहीं लगेगा, कंपल्सन आएगा कोई भी नहीं लगेगा। तो शायद उसके पास पैसे होंगे। देखो, सब्जेक्ट होगा, कोई भी मॉडल होगा, मे, मस्ट, वुड और ये सब, और फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट दिखाना है, जो चीजें हमें दिखानी है कि उसके पास होंगी। तो एक मैं बोलता हूँ, शायद उसके पास पैसे होंगे। ही मे हैव मनी। ही मे हैव मनी। ठीक है। शायद उसके पास लैपटॉप होगा। He may have a laptop. करेक्ट करेक्ट। शायद उसके पास कार होगी। He may have a car. करेक्ट। तो अभी ये ना, ये मॉडल जो है ये तो सिंपल यूजेस है। अभी मॉडल जो बहुत, जैसे कि हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड लगाते हैं, और जैसे कि परमिशन लेते हैं तो मे और टेक करके बोलते हैं ना, मे आई टेक योर पेन, मे आई सिट हियर। और जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड से रिक्वेस्ट करते हैं ना, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज वाटर। तो इसमें भी चलता है। और शुड जो चलता है वो सजेशन पे चलता है कि यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, तो शुड इसमें आता है। और तो इसी तरह ये प्रेजेंट का था। अभी पास्ट में मॉडल ले जाओगे तो सारे मॉडल के साथ हैव जाएगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ एक दो। शायद कल तुमने उसको पीटा होगा। Maybe you maybe have a beaten. जब पास्ट में मॉडल जाएगा तो मॉडल अपने साथ हैव लेकर जाएगा। हर एक मॉडल अपने साथ हैव लेकर जाएगा। और मतलब मॉडल और हैव तो बोलना ही बोलना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी बोलना है, ये भी याद रखना। शायद कल you may have had beaten you yesterday. You may have beaten him yesterday, ऐसे करके। Yeah, you may have beaten him yesterday. ठीक है। शायद कल तुम पढ़ रहे होगे। You may have. हम हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो बी का बीन लगा दो। यहाँ पर जब कंटिन्यूअस बोल रहे तो मे बी लगा रहे थे, अब वहां पर मे हैव बीन लगाएंगे, तब आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, बोलो। You may have been studying. You may have been studying. You might have been studying. Correct. ठीक है। पोजीशन में शायद कल तुम्हारे पास पैसे होंगे। You may have money. You may have had, लेकिन have के बाद थर्ड फॉर्म ही लगना है। You may have had money yesterday.
You may have had money yesterday. शायद कल तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे. You may have had washed clothes. You may have had to wash clothes. Okay, you may have had to wash clothes. Yeah, compulsion. Yeah. शायद कल तुम अपने दोस्त के साथ होगे. You may have had to. अब स्टेट ऑफ बीइंग है, हैव के बाद बीइंग दिखाओ. You may have been With friend. meet friend. You might have been with your friend last night, you know, like that. ठीक है, तो ये हुआ. अब ऐसे ना प्रैक्टिस होती तो मतलब कि ये ना रोज 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 तो समझ में आ जाता है, एक बार फिर बोलने में यूज करने में आसानी से आ जाता है. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. सर, क्योंकि ये सारे इतने ज्यादा यूज नहीं रहते, अपन बस मतलब बोलने में जो आते हैं वही वो रिवीजन करते हैं. So thank you so much. Of course, whenever you feel, of course, you just call me. Of course, I'm going to make you rapid fire each and every topic. Thank you so much, ma'am. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. Take care. Bye.